Hello and welcome to Miles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 17th of October 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. So the first article is about the recently published Global Hunger Index of the 2022. So about this article, we'll look at the publishing authority, we'll look at the rank of India, about the various concerns that are related to India, and also the various aspects of Global Hunger Index. Now this article is really disappointing as the news brings some actually आप कह सकते हो कि कुछ disappointing चीज़ें ये ला रहा है इंडिया के लिए because India has been ranked quite poorly in this particular ranking. ठीक है, in this index. So except Afghanistan अगर आप देखोगे, India has performed worse than all the countries in the South Asian region in the Global Hunger Index. It has been ranked 107 out of 121 countries. तो बाकी जितना भी सारा यहाँ पे neighbors है इंडिया का, तो सबसे ऊपर इंडिया का ही रैंक है. And this has been taken from the Hindu, and this can be important from GS paper to from governance point of view as well. और prelims में तो यहाँ पे रैंक वगैरह ऐसे पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि इंडिया का रैंक इतना खराब है तो लेट्स सी. ठीक है, अब देखिए जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट हैज द ऑब्वियस सा बात है कि यूनियन गवर्नमेंट के लिए काफ़ी एक डिसअपॉइंटिंग खबर है. सो बेसिकली द गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड द ग्लोबल हंगर इंडेक्स. तो पहले भी 2020 के टाइम में भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे जब ये पब्लिश किया गया था तभी भी गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट किया था. तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा है कि इट इज़ एन एरोनियस मेजर ऑफ हंगर. ठीक है, एंड इट इज़ बेसिकली एन अटेम्प्ट टू टेंट इंडियाज इमेज. अब इंडिया का जो रैंक था 2021 में इंडिया वाज रैंक 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज. तो इस बार इंडिया का रैंक और भी ड्रॉप हुआ है. As I was saying about the current context, India has performed really worse than all the other countries in the South Asian region in the Global Hunger Index of the 2022. It has been ranked 107 out of 121 countries. India का जो रैंक था लास्ट ईयर इट वाज 101. इस बार ये और भी ड्रॉप हो गया. इट हैज गन डाउन टिल 107 आउट ऑफ 121 countries. अब हम थोड़ा बात करते हैं about this Global Hunger Index के बारे में. Now, this Global Hunger Index, which is known as GHI in short, is a tool for comprehensively measuring and tracking hunger at global, regional and national levels. ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है, this basically makes an attempt to learn about the scenario of hunger across the world. GHI scores are based on the values of 4 component indicators. These indicators are important because questions may be asked from these indicators. Now this basically जो GHI है, that is the Global Hunger Index, it basically depends upon the indicators like undernourishment, child stunting, child wasting and child mortality. हम इसके बारे में आगे बात करेंगे. अब ये जो GHI स्कोर है इट इज कैलकुलेटेड ऑन 100 पॉइंट स्केल. अब देखिए बेसिकली ये स्केल पे मेजर किया जाता है विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 100. अगर मान लीजिए स्कोर 0 है देन इट इज सेड टू बी द बेस्ट स्कोर, और जो 100 है इट इज द वर्स्ट वन. ठीक है, तो इसी स्कोर में इसी केस में क्या हुआ है, इंडिया का जो इस साल का स्कोर है इट इज बेसिकली 29.1. ठीक है, इस साल का GHI जो स्कोर है इंडिया का इट इज 29.1. और जो पहले था, पहले ये थोड़ा कम था लेकिन अभी ये स्कोर जो है बढ़ के 29.1 हो चुका है. तो बेसिकली बात यही है कि जितना ज्यादा स्कोर है उतना ही ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग नेशन है. ठीक है, इन रिगार्ड्स टू दी हंगर सिनेरियो. The GHI is prepared by, अब जो authority है which publishes it is are 2 European NGOs. The number one is about the concerned worldwide and the next one is World Hunger Hilfa. अब ये जो concerned worldwide है it is a NGO which belongs to Ireland and this World Hunger Hilfa is a German NGO. ठीक है, now this GHI जो है it is an annual report है, याद रखिएगा. ठीक है, it is published annually, हर साल से publish किया जाता है. and each set of GHI scores uses a data from a 5-year period. तो इस साल का जो डेटा है that is 2022 का जो इंडेक्स है, जो रैंकिंग्स है, जो स्कोर्स है, now these are based on data which have been taken from the period from 2017 से लेके 21. ठीक है, ये 5 साल का डेटा लेता है लेकिन हर साल इसे पब्लिश किया जाता है. Now let's look at the performance of various countries on this particular scale that is Global Hunger Index of 2022. अब देखिए पहले हम बात करेंगे about the global scenario के बारे में. तो global scenario की अगर बात करें, यहाँ पे कहा गया है कि जो average score है that is the GHI का जो score है of all the countries या worldwide जो score है, now it has not improved like significantly.
ठीक है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे नहीं दिखाई दिया गया है। तो कहा गया है कि 2022 में द स्कोर इज ओनली 18.2, ठीक है, 18.2 स्कोर है, एंड इन 2014 इट यूज्ड टू बी 19.1। तो यस, आप देख सकते हो कि कम हुआ है, और अगर कम होता है तो हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली द सिनेरियो इज बेटर नाउ, बट दैट इज ओनली अ स्लाइट इंप्रूवमेंट। कहा गया है कि देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है। लेकिन ये भी कहा गया है कि 2022 का जो GHI स्कोर है, इट इज स्टिल कंसिडर्ड मॉडरेट इन नेचर। ये आप कह सकते हो कि जो फिगर्स है दिस आर क्वाइट एक्सेप्टेबल। व्हाई? बिकॉज करेंटली यू शुड नो द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग अ नंबर ऑफ क्राइसिस। जैसे कि आप कह सकते हो कि एक तो हो गया द वर्ल्ड इज नाउ ट्राइंग टू ओवरकम फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक, एंड करेंटली ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है विच हैज लेड टू द ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसको भी डिस्टर्ब कर दिया है। नाउ दिस हैज बेसिकली लेड टू द इंक्रीज ऑफ प्राइसेस। इंडिया में भी इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है, विच हैज आप कह सकते हो कि ग्लोबल फूड हो गया, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर प्राइसेस हैव आप कह सकते हो कि द प्राइसेस हैव राइज सिग्निफिकेंटली। नाउ अगर आपको पता है कि जितना दाम बढ़ेगा उतना ही लाइक मोर एंड मोर पीपल विल बी पुश्ड इन द पॉवर्टी एंड हंगर एज वेल, ठीक है। तो यही कहा गया है कि जो 2023 का जो सिनेरियो है दिस कैन बी वर्स एज कंपेयर टू 2022। ये जो स्कोर है ये वापस से बढ़ सकता है। As per the index, there are 44 countries that currently have serious or alarming hunger levels, and without a major shift, अब देखिए 44 countries are said to have a serious level of hunger, ठीक है। कहा गया है कि यहाँ पे जो 44 कंट्रीज है ना, इसमें इंडिया भी है। और अगर मान लीजिए कि जो 44 कंट्रीज है, इफ वी डू नॉट टेक अप सम सब्सटेंशियल मेजर्स, if the government or the authorities not take up measures to eradicate poverty or in this case hunger, तो हो सकता है कि 2030 का जो इंडेक्स होगा वहां पे काफी एक पुअर सिनेरियो मतलब बाहर आ सकता है, ठीक है। And about the top 20 worst performers, you can see that the countries like Belarus, Bosnia and Herzegovina, Chile, China and Croatia. Now these are the countries who have been placed in the best positions. ठीक है, यहाँ पे top 5 countries में उनका नाम आ गया है. So China, you can see even though they have got the highest population of the world, but still they have maintained to like deal with hunger in an efficient manner. उसके बाद if you look at the worst performers, it is Chad, Democratic Republic of Congo, Madagascar. Now these countries, they are the countries who have been ranked at the bottom of the index. इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो एज आई टोल्ड यू कि आउट ऑफ ऑल द नेबर्स इंडिया हैज परफॉर्म द वर्स्ट। सो इंडिया जिसका रैंक 107 है, इट इज रैंक बिलो श्रीलंका। तो श्रीलंका इवन दो इट इज गोइंग थ्रू अ नंबर ऑफ क्राइसिस, अब क्राइसिस तो देखिए इस साल का है तो हो सकता है कि बाद में इसका रैंक थोड़ा नीचे हो जाए, लेकिन लाइक whatsoever, so Sri Lanka we can say it has been able to perform quite well in this index with a rank of 64, Nepal with 81 and Bangladesh 84 and Pakistan our neighbors have been placed at a rank of 99. India अभी इस साल का जो रैंक है that is I told you 100 से लेके 100 तक, तो इसमें इंडिया का रैंक आ चुका है, इंडिया का स्कोर है 29.1. Now this 29.1 has placed this score has placed India in a serious category, ठीक है, जहाँ पे hunger should be dealt immediately. Afghanistan is only 2 ranks below India, that is 109, and China as I told you with a score of less than 5, ठीक है। अब जितना कम स्कोर है उतना ही यहाँ पे हंगर कम है, ठीक है। Now with a score of less than 5 has topped the chart together with 16 other countries. तो कहा गया है कि China is among the top 17 countries who have been able to efficiently deal with hunger. Now let's discuss about the performance of India in this particular index of 2022. तो as I told you about the 4 indicators, पहला हम बात करेंगे about child wasting. तो wasting के केस में you can see this इंडिया का जो परसेंटेज है 19.3%, ठीक है। तो ये पहले 14 में 15.1 था एंड 2000 में 17.15। करंट में अगर आप देखोगे द रेट ऑफ चाइल्ड वेस्टिंग इन इंडिया इज 19.3%, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पर है। इट इज़ ऑल्सो सेट टू बी हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड वेस्टिंग इज नथिंग बट इट इज द लो वेट फॉर हाइट। तो अगर मान लीजिए इफ अ चाइल्ड हु इज टू थिन फॉर हिज और हर हाइट, एंड इट इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ रैपिड रिसेंट वेट लॉस और द फेलियर टू गेन वेट, ठीक है। उसके बाद बताया गया अबाउट द अंडर नरिशमेंट जो है, नाउ दिस इज आल्सो राइजन इन इंडिया फ्रॉम 14.6% इन 2018 to 20 टू करेंटली अगर आप देखोगे इट इज 16.3%,
तो ये इंप्लाई करता है कि इन केस ऑफ इंडिया मोर देन 200 मिलियन पीपल इन इंडिया दे आर स्टिल कंसिडर्ड एज अंडर नरिश्ड. अंडर नरिशमेंट कब होता है? इफ द सप्लाइड विद लेस देन द मिनिमम अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और फूड एसेंशियल फॉर साउंड हेल्थ एंड ग्रोथ. जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर वो नहीं मिलता है तो उसे अंडर नरिशमेंट कहा जाता है. देन अबाउट, अब देखिए जो चाइल्ड स्टंटिंग है एंड मॉर्टलिटी है, इन दो केसेस में लेकिन इंडिया हैज बीन एबल टू गेट अ लिटिल बेटर, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि चाइल्ड स्टंटिंग के केस में देयर इज लो हाइट फॉर एज के केस में. अब देखिए वेस्टिंग में क्या था? वेस्टिंग वाज अबाउट द लो वेट फॉर हाइट एंड स्टंटिंग इज द लो हाइट फॉर एज. तो हाइट के केस में द rate of child stunting in India has declined from 38.7% to 35.5%. तो स्मूथ यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्लाइटली इंप्रूव किया है विद इन 14 एंड 22. एंड मॉर्टलिटी के केस में मॉर्टलिटी और द अंडर 5 मॉर्टलिटी हम कहते हैं रेट, इट रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड डाइंग बिटवीन द बर्थ एंड एग्जैक्टली 5 years ऑफ एज. तो एंड इट इज एक्सप्रेस्ड पर 1000 लाइफ बर्थ. तो इस केस में भी यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप दिखाई दिया गया है फ्रॉम 4.6% to 3.3% in the current year. So this is how India has been able to perform in the hunger index of the current year. Now in this picture we have tried to graphically represent the performance of India in the various indicators. So as you can see in this picture, India has been able to perform efficiently in only these two indicators, that is in this brown and the blue line. This brown line jo it is representing the stunting, and this blue line, the light blue line is representing the mortality rate. So mortality rate and in the case of this stunting, तो ये थोड़ा सा improve हुआ है as I told you in the previous slide. और इस केस में अगर आप देख सकते हो जो दो लाइन है which represents the undernourishment and the wasting, now this is basically rising up. Okay, so India needs to take up some serious measures and initiatives to deal with the current hunger index. Now I have given a police practice question, kindly answer in the comment section. The next article is about INS Arihant, which has carried out successful launch of the SLBM. SLBM in this case it stands for Submarine Launched Ballistic Missile. Now this is basically a series or a family of missile which is also called as the K family missile. तो K क्यों कहा जाता है? Because it is named after or code named after our ex-president Dr. APJ Abdul Kalam. Now ये जो K series है या जो Submarine Launched Ballistic Missile है, now they have been indigenously developed by the DRDO, that is the Defense Research and Development Organization. And regarding this article, I would also like to say you that the nuclear scenario of India becomes really important from our GS preparatory science and technology point of view. Questions may be asked about the various tests like Pokhran. तो Pokhran 2 आपको पता होना चाहिए. It was conducted, जो nuclear test है, it was conducted back in the 1998 and 2003 में भी India had come up or declared its nuclear doctrine. ठीक है, तो ये सारा चीज you should know, and also you should have knowledge about the Agni series of missile. तो ये तो हो गया about the SLBM और the K series. And अगर आप देखोगे the significant nuclear weapons के बारे में, then mention always must be made of the Agni series of missile which forms the backbone of India's nuclear weapon delivery. ठीक है, and also about the Prithvi series. Prithvi जो है, it is basically a short range ballistic missile. So today's article will take up some knowledge and this has been taken from the Hindu. So in the current context, you should know that the SLBM जो है, that is the Submarine Launched Ballistic Missile. Now they are sometimes called the K family of missile or the K series of missile. So this K family of missile, as I was saying you, it was developed, it is indigenously developed by the DRDO. ये Indian built, Indian initiative है. The family is codenamed after Dr. APJ Abdul Kalam, the center figure in India's missile and space program. Now he has taken a number of initiatives. इनको he is known as the pioneer of the rocket science in India, right? So because these missiles are to be launched from submarines, they are lighter, more compact and stealthier. तो you can see in this picture, ये हो गया Arihant. ठीक है, अभी मैंने बताया था about the INS Arihant. So this you can see the Arihant, और Arihant से launch हो रहा है this K-15. ठीक है, अब now because these missiles are launched from the submarines, इसीलिए जो मिसाइल है ना, they are lighter in nature and they are more compact and stealthier as well. ठीक है, और ये जो Arihant है, Arihant के बारे में you should know कि it is also a nuclear powered submarine. ठीक है, तो this is basically nuclear power है, nuclear से ये काम चलता है, and also it has this K-15 mounted on it. And this particular family जो है, इसमें आपको और भी मिसाइल मिलेगा. For example, this K4, then K5 and K6.
ठीक है। और ये जो पार्ट ऑफ द के फैमिली है इट इज SLBM K15। अब ये जो SLBM K15 है विच हैज बीन बिल्ट एंड टेस्टेड नाउ दिस इज आल्सो कॉल्ड द B05 और इसे सागरिका भी कहा जाता है, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है सागरिका। तो आउट ऑफ ऑल दिस सागरिका बेसिकली रेफर्स टू दिस K15 जिसे रिसेंटली टेस्ट किया गया है। नाउ देखिए इसका जो रेंज है ना ये काफी ज्यादा नहीं है, इट इज ओनली 750 किलोमीटर, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो टेस्टिंग दिस पर्टिकुलर K4 जो आपको दिख रहा है K4 मिसाइल। K4 मिसाइल का रेंज काफी ज्यादा है। दिस ऑल्सो बिलोंग टू द K फैमिली ओनली, दैट इज SLBM ओनली, लेकिन इसका जो रेंज है ना इट इज 3500 किलोमीटर। तो यू कैन सी द डिफरेंस। तो जो K15 है इसका रेंज इज ओनली 750 किलोमीटर। So now that you have learned about the various aspects about the K series or the SLBM, now let's discuss a little about the significance of this test that has been carried out, ठीक है। तो बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस पर, दैट इज अबाउट द करंट कंटेक्स्ट, क्या हेल्प होगा। अब ये टेस्ट फायर करने का देखिए फायदा क्या हुआ है। इंडिया का जो न्यूक्लियर डिटरेंस है उससे आप कह सकते हो कि उससे और ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिली है, ठीक है ना। न्यूक्लियर डिटरेंस एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपने शायद जियोपॉलिटिक्स में कभी सुना होगा। सो न्यूक्लियर डिटरेंस का क्या मतलब है। अब ये जो कंट्री जो ये न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करते हैं ना, ये डेवलप क्यों करती है। सो एक कंट्री देखिए न्यूक्लियर वेपन्स इसीलिए डेवलप करती है ताकि कोई दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री आप पर या उस कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक करने से पहले सोचे या घबराए, ठीक है। सो न्यूक्लियर डिटरेंस इज बेसिकली अ मिलिट्री डॉक्ट्रिन है ये, अकॉर्डिंग टू विच द पॉसिबिलिटी दैट अ कंट्री विल यूज द न्यूक्लियर वेपन्स इट पॉजेसेस इन रिटेलिएशन विल डेटर एन एनिमी फ्रॉम अटैकिंग। तो बेसिकली यहाँ पे एक डर जैसा माहौल बनाया जाता है इन द केस ऑफ डिटरेंस, सो दैट सामने से आपको कोई न्यूक्लियर अटैक ना करे, ठीक है। तो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द NFU एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। NFU स्टैंड्स फॉर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो इंडिया का जो ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया का ये डॉक्ट्रिन का मतलब कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन इंडिया का यही मानना है कि इंडिया इज नेवर गोइंग टू यूज द न्यूक्लियर इन फर्स्ट प्लेस, ठीक है। इंडिया कभी एग्रेसिवली इसे यूज नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कोई सामने से यूज करे तो अलग बात है, बट इंडिया कभी भी सामने से जाके आप कह सकते हो कि इंडिया इज नेवर गोइंग टू अटैक और बिकम एग्रेसिव बाय यूजिंग दिस बाय यूजिंग आवर ओन न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। इंडिया इज नेवर गोइंग टू यूज एट द फर्स्ट प्लेस। इसी को कहा जाता है NFU, दैट इज द नो फर्स्ट यूज। तो हमने अटैक करने के लिए नहीं यहाँ पे डेवलप किया न्यूक्लियर वेपन्स, अपने सोवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप की है। इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर डिटरेंस, ठीक है। अब ये देखिए जो टेस्ट अभी जो कंडक्ट हुए हैं, अब इससे क्या एडवांटेज है। अपना जो न्यूक्लियर डिटरेंस है इट विल बी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो स्टैंडिंग कैसे होगा, बिकॉज देखिए न्यूक्लियर डिटरेंस जो है वो ज्यादा क्रेडिबल तब होता है जब आपका आर्म फोर्सेस, नेवल फोर्सेस एंड एयर फोर्सेस आर ऑल इक्वली न्यूक्लियर केपेबल एंड एम्पावर्ड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर जो आपका वेपन्स है इट इज ओनली लिमिटेड टू योर ग्राउंड फोर्सेस, ठीक है। दैट वुड बी हैविंग लेस न्यूक्लियर, बेसिकली इट वुड बी हैविंग लेस न्यूक्लियर डिटरेंस। अगर मान लीजिए आपके पास जो नेवल फोर्सेस है, आपके पास जो एयर फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस है, इफ दे आर इक्वली, आप कह सकते हो इफ दे आर इक्वली न्यूक्लियर केपेबल एंड एम्पावर्ड, नाउ दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ ग्रेटर न्यूक्लियर डिटरेंस। Now, this is the reason why it is going to help in the credibility or enhancing the nuclear deterrence of India. तो इसी के बेसिस पर देखिए यहाँ पे मैंने बताया है अबाउट दी नाउ द ये जो मैंने बताया है अबाउट दी लैंड, एयर एंड अबाउट दी वाटर फोर्सेस बिकमिंग न्यूक्लियर केपेबल, इसी को कहा जाता है इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड भी कहा जाता है, ठीक है। तो इंडिया के केस में दिस आर द वेरियस इनिशिएटिव्स एंड पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ओवर द लैंड, एयर एंड सी। आप एक बार देख लीजिएगा बिकॉज क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अभिनंदन अरुणाचल। अब today's article will try to learn about this अभिनंदन अरुणाचल के बारे में, जहाँ पे कहा गया है कि द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुणाचल दैट इज चावना मेन along with the tourism minister Tezu MLA and the director of tourism that they took part in the program which is known as अभिनंदन अरुणाचल which is taking place at Indore, ठीक है। नाउ ये जो इवेंट है नाउ दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इस आर्टिकल से हेल्प से हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो मिनिस्टर्स है या डिग्निटरीज है, नाउ व्हाट दे हैव स्पोकन अबाउट अरुणाचल। We'll learn about the highlights that have been spoken about Arunachal, because ये जो सारा चीजें हैं या points है या highlights है, now they can be used in various aspects of our answers, ठीक है। अरुणाचल का अगर मान लीजिए कि टूरिज्म के ऊपर अगर कुछ भी ऐसे आता है तो we'll be able to cite those examples. So let's see. Now this has been taken from the Echo of Arunachal.
अब आप देख सकते हैं कि इन दिस पिक्चर द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल चाउना मेन हैज हाईलाइटेड द स्टेट्स टूरिज्म पोटेंशियल ड्यूरिंग एन अभिनंदन अरुणाचल प्रोग्राम व्हिच हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश में. तो अगर आपको पूछेगा कि ये किसने ऑर्गेनाइज किया, दिस हैज बीन डन बाय अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विप्रा फाउंडेशन. ठीक है. द प्रोग्राम विच वॉज ऑर्गेनाइज टू प्रोमोट अरुणाचल टूरिज्म पोटेंशियल पे स्पेशली फोकस किया गया ऑन स्पिरिचुअल टूरिज्म. ठीक है. तो स्पिरिचुअल टूरिज्म में फोकस किया गया है. नाउ दिस इज आल्सो अटेंडेड बाय द टूरिज्म मिनिस्टर नाकाप नालो, एमएलएs लाइसाम सिमाई एंड कारिकोकरी, and also the tourism the director, that is Abu Taing. Now Arunachal Pradesh is home to यहाँ पे कहा गया है that Arunachal Pradesh is home to 26 major tribes and also there are more than 100 sub-tribes with their own distinct cultures, traditions and customs. You should also know about some of the major tribes का जो culture है, traditions है, about the food, about the clothes वगैरह के बारे में you should have knowledge about it. The state with 5 climatic zones, that is ranging from tropical आपको मिलेगा at the ground level to alpine, which you would find the higher reaches of the Arunachal Himalayas. ठीक है, would make it one of the top biodiversity hotspot in the world. So basically attempts have been made by the various ministers and MLAs to make Arunachal a favorable spot for Indian tourism. सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या क्या हाईलाइट्स एंड पॉइंट्स बताया गया है रिगार्डिंग द स्पिरिचुअल टूरिज्म और द रिलीजियस टूरिज्म के बारे में. तो पहले यहाँ पे बताया गया है अबाउट द कनेक्शन ऑफ अरुणाचल प्रदेश विद द महाभारत. सो कहा गया है कि इट वॉज भीष्मक नगर इन द प्रेजेंट लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे रुक्मिणी हरण ऑफ द महाभारत इट टुक प्लेस. And also Lord Krishna along with Rukmini Devi rested in a place called Manlithan. You have heard about this place called Manlithan, which is present in the lower Siang district of Arunachal Pradesh. So when Krishna was on his way to Tejpur, he has basically rested in this place. Now this place is also worshipped. The tallest Shivalinga in the country is in lower Subansiri, that is 0 में पाया जाता है, the tallest Shivalinga. And उसके बाद one of the most favorable tourist spot of Arunachal Pradesh, that is Parshuram Kund. Now this is in the Lohit district. Now this यहाँ पे बताया गया है कि this can be developed as a Kumbh of the East. Now this Kumbh of the East can be developed with the various government authorities from the center and the state, and also social organizations like the Vipra Foundation, which is basically conducting the Abhinandan Arunachal. तो कुंभ मेला जो है, कुंभ मेला और कुंभ मेला भी कहा जाता है, इट इज अ मेजर पिलग्रिमेज एंड फेस्टिवल इन द हिंदुइज्म रिलीजन. इट इज सेलिब्रेटेड इन अ साइकिल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 years के बाद होता है टू सेलिब्रेट एवरी रिवॉल्यूशन बृहस्पति कंप्लीट्स. ठीक है. एंड दिस इज बेसिकली डन एट 4 रिवर बैंक के साइट में होता है. देयर इज इलाहाबाद व्हिच इज करेंटली नोन एज द प्रयागराज, उसके बाद हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन. तो दीज आर द प्लेसेस वेयर द कुंभ मेला टेक्स प्लेस. और कहा गया है कि अरुणाचल का जो ये परशुराम कुंड है, दिस कैन ऑल्सो be developed as the Kumbh of the East, right? उसके बाद the Buddhist religion sites in Namsai, then Mechuka, Tuting, Bomdila and Tawang. Now they can also be developed, or they also the potential of becoming the major attraction for Buddhist pilgrims or the Buddhist tourists. Some more points that have been told in this meeting. तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश has the potential of offering any form of tourism, be it adventure or nature, then religious, research, cultural or ecotourism, with abundant natural beauties and hospitable people. That is about the friendly nature of the people. तो यहाँ पे कहा गया है, देखिए, under initiative of the central and the Arunachal governments for the development of the Parshuram Kund. So this place, that is Parshuram Kund, will see significant increase of Indian tourist inflow from lakh to crore in years to come, which will contribute to the economy or the economic development of the state. The DCM, that is the Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh, has also launched a Parshuram Kund Amantran Yatra, which is going to start on 8th of November this year and will conclude on 8th of January of the next year. तो ये 2 महीने के लिए यहाँ पे यात्रा होगा at the Parshuram Kund only. So the Deputy Chief Minister and his fellow dignitaries met Madhya Pradesh Tourism Minister Usha Thakur. तो यहाँ पे basically discussion किया गया and ideas exchange किए गए and discuss the possibility of incorporating the tourism policy of Madhya Pradesh in Arunachal Pradesh. ठीक है. The people यहाँ पे जो भी लोग थे, the people of Indore or Madhya Pradesh, now they have also decided to contribute rupees 51 lakhs for the development of the region, that is Parshuram Kund. ठीक है. और देखिए मीटिंग जो है, ये जो अभिनंदन अरुणाचल, ये कहाँ पे हुआ है? दिस हैज टेकन प्लेस इन इंदौर. एंड इंदौर, देखिए, वाई इंदौर? बिकॉज इंदौर से यहाँ पे सीखने के लिए इंडिया को बहुत सारा कुछ है. बिकॉज इंदौर जो है, इट हैज बीन वोटेड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर द लास्ट 6 years consecutively. Even this year also Indore was ranked as the cleanest city of India.
ठीक है. सो प्रैक्टिस के लिए देयर इज अ टॉपिक फॉर एसे विच इज इंपॉर्टेंट. थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा. इन केस यू राइट एन एसे, इन केस यू वांट टू if in case you want to have it evaluated, you may also post your essay on the comment section. The next article is about the PM किसान सम्मान सम्मेलन of 2022. तो ये आज ही स्टार्ट हुआ है. देखिए द 2-day PM किसान सम्मेलन के बारे में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे. दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम जीएस पेपर टू एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू. दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंडिया टुडे. अब ये जो प्रोग्राम है दैट इज PM किसान सम्मान सम्मेलन. नाउ दिस विल बी इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ये आज स्टार्ट होने वाला है एंड मोर देन 1 crore farmers from various institutions are expected to attend the event. अब ये जो 2-day event है, that is PM Kisan Samman Sammelan. Now this will be organized in New Delhi, and this has been organized by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and also by the Ministry of Chemicals and Fertilizer. Now they have jointly initiated this meeting. उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि around 16,000 crores of rupees will be released under the flagship scheme PM Kisan. अब देखिए ये जो सम्मेलन सम्मान है, तो यहाँ पे देखिए there are certain highlights. There is PM Kisan, उसके बाद PM KSK, then about the Bharat Urea Bag, then One Nation One Fertilizer Scheme. Now these are certain things that are going to be taken up in this particular सम्मेलन. हम इसी के बारे में हम बात करेंगे. तो PM Kisan जो है, you should know that eligible farmer families are provided a benefit of rupees 6,000 per year in 3 equal installment में पे किया जाता है. तो अभी if I'm not wrong, it is the 12th installment that is going to be released this particular event में. And under the PM KSK scheme में the fertilizer retail shop जो है in the country, now they will be converted into PM KSK in a phased manner. ठीक है, तो ये क्यों किया जाएगा ये हम आगे बात करेंगे. और यहाँ पे जो बताया गया about the भारत यूरिया स्कीम, तो इसमें क्या होगा, this will help the companies or the आप कह सकते हो कि the companies who deals in fertilizer to come under the single brand name called भारत. ठीक है. The first one is about the PM Kisan scheme जो लॉन्च किया गया था February 2019 में. So under this scheme an amount of 6,000 per year दिया जाएगा in 3 equal installment into the bank account. तो ये DBT है, that is direct benefit transfer, जहाँ पे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है. तो this is a central sector scheme. सेक्टर स्कीम का मीनिंग यही है कि 100% जो फंडिंग है ये सेंटर ही करेगा, यहाँ पे स्टेट कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है. इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा, the entire responsibility of the identification of beneficiary of the beneficiary farmer families rest with the state or the union territory government. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, to supplement the financial needs of the small and marginal farmers. तो जो small and marginal farmers है जिनके पास लैंड है, तो कभी they basically they face the scarcity of finance, तो इस केस में उनको हेल्प किया जाएगा in procuring various inputs to ensure proper crop health and also appropriate yield, which will commensurate with the anticipated farm income at the end of each crop cycle. तो देखिए farmers often go through hardships, तो ताकि उनका जो इनकम है वो बढ़ा दिया जा सके, उसे डबल किया जा सके, तो इसीलिए ये स्कीम लाया गया था to protect them from falling into the clutches of the money lenders. तो कभी कभी जब फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता या फार्मर का जो इनपुट है, तो इसमें अगर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं रहता है, दे ऑफन एंड अप एंटरिंग इनटू द क्लचेस ऑफ द मनी लेंडर्स. और ये जो मनी लेंडर्स है, जो प्राइवेट मनी लेंडर्स है, सो दे व्हाट दे यूज इज दैट दे यूज यूजरियस मेथड टू एक्सट्रैक्ट द मनी बैक फ्रॉम द फार्मर, सो व्हिच आल्सो लीड टू द व्हाट दे आल्सो लीड टू द सुसाइड ऑफ द फार्मर्स. तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए दिस पीएम किसान स्कीम वाज ब्रॉट अबाउट. द नेक्स्ट वन इज द पीएम किसान समृद्धि केंद्र which is known as the PMKSK. अब ये PMKSK के अंदर nearly 600 PMKSK will be established. ठीक है, तो इसे लॉन्च किया जाएगा of the Ministry of Chemicals and Fertilizers. अब ये जो PMKSK है, देखिए कहा गया है कि the retail shop of fertilizer, तो currently there are around 2.7 lakhs of fertilizer का retail shop in the world. तो now this will be converted into one stop shop called the PMKSK. There is प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र. Now this अगर ये मान लीजिए कि कन्वर्ट जब हो जाएगा ना, दे विल बी एबल टू कैटर टू द वेरियस नीड्स ऑफ द फार्मर्स. फॉर एग्जांपल द सीड्स, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, टेस्टिंग सॉइल, तो ये सारा जो चीजें है ये एक ही जगह पे पाया जाएगा. दैट इज PMKSK. The last one is about the Bharat Urea Bags, which has been brought about under the One Nation One Fertilizer scheme. अब ये जो One Nation One Fertilizer है, Indian government is basically trying to focus or bring out all the fertilizer under one brand, that is Bharat. ठीक है, तो फर्टिलाइजर कंपनी जहां से भी हो या मान लीजिए यहाँ पे जो भी फर्टिलाइजर है ना, उससे प्रोड्यूस किया जाएगा अंडर द सिंगल नेम दैट इज भारत.
ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, दिस एम इज टू स्टैंडर्डाइज द फर्टिलाइजर ब्रांड्स अक्रॉस द कंट्री रेस्पेक्टिव द कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स इट। तो जो भी कंपनी प्रोड्यूस करेगा द ब्रांड विल बी भारत ओनली, एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल ब्रांड भारत फॉर ऑल फर्टिलाइजर्स विल रिड्यूस द क्रिस क्रॉस मूवमेंट में जो फर्टिलाइजर्स यहाँ पे द मूवमेंट की वजह से, नाउ दिस ऑल्सो लीड्स टू द हाई फ्रेट सब्सिडीज व्हिच ऑल्सो लीड्स टू द हायर प्राइस ऑफ द फर्टिलाइजर्स। नाउ दिस विल बी कर्ब्ड, दिस विल बी टैकल्ड बाय ब्रिंगिंग देम अंडर वन ब्रांड दैट इज भारत। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था। लेट्स लुक एट द आंसर्स नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड वाज अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द स्लॉथ बेयर। अब जो स्लॉथ बेयर है इसका करंट स्टेटस, इफ यू हैव रेड द प्रीवियस आर्टिकल और वॉच्ड माय वीडियोस देन यू विल कम टू नो इट इज वल्नरेबल अंडर द IUCN रेड लिस्ट। And about this festival which was recently celebrated, that is Chindang festival. Now this festival is celebrated by Sajolang tribe. ठीक है? So for now that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye bye and take care.